Good morning, class 6. I hope you all are good and please be safe and stay at home. Please don't go outside. It's not good for you to go out. So, today we will continue in English literature. So, today I'm going to teach you the next lesson, next chapter, which is chapter number 4, and that is Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India. Okay, so this is the name of the chapter, and for that you have to open page number 54 and 54 in your textbook. So this is your textbook here. This is your class 6 Roots and Wings textbook. So you have to open this book and then you have to open page number 54 here. It's page number 54. So this you have to open and do this exercise at first. So what I'm going to tell you is this exercise. In this exercise, there are some nicknames given and there are some pictures given. Okay. So what you have to do is you have to just match those names with those pictures which they belong. Okay. तो जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक निकनेम दिया गया है जिसको पूरी दुनिया जानती है. Everybody knows from that name, that is the Iron Man of India. Like that, here we have some match the following nicknames with their pictures. Okay, so there are some people given in these pictures. So I'm going to show you those pictures and those names in our textbook. So please open your textbook before doing something, or please take a pencil in your hand. Okay. So I'm going to teach you this lesson today. I will explain you what is in this chapter, and I'm hoping that you have done all your work in your English literature as well in English language. So continue. Let's do it. Okay. Yes, class, as you can see, it's on page number 54 in your English literature textbook. So here, as you can see, what you have to do is match the following nicknames to their pictures. आपको ये जो nicknames दिए गए हैं बीच में सारे 6 names are given here and 6 pictures also given here. So you have to match with those person, with those pictures. All right. तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? सरोजिनी नायडू को. ओके, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? सरोजिनी नायडू को. ठीक है. सो दिस नेम इज गिवन फॉर सरोजिनी नायडू. नेक्स्ट वन इज शहीदे आजम. शहीदे आजम, who is called the Shahide Azam? So Bhagat Singh is called the Shahide Azam of India. Okay. Next one is Lokmanya. Everybody knows this. Lokmanya Tilak. He is well known from the name Lokmanya. So Bal Gangadhar Tilak. Okay. So Lokmanya is for Bal Gangadhar Tilak. Now move on to the fourth one is Grand Old Man of India. So Grand Old Man of India belongs to the Dadabhai Naroji. Okay. So it's for Dadabhai Naroji. Grand Old Man of India is name given for Dadabhai Naroji. Okay. Next one is Machiavelli of India. Machiavelli of India. Machiavelli is a person. Machiavelli एक आदमी था जिसका नाम था Machiavelli. It's not a word. Okay. So Machiavelli एक नाम है जो इटली का रहने वाला था, जिसने राजनीति पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया था. मीन्स बहुत उसको जानकार माना जाता है उसका, निकोल मैकियावेली को. तो इसीलिए मैकियावेली ऑफ इंडिया, जो इंडिया की राजनीति से रिलेटेड, मीन्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी विज्ञान दिया है, राजनीति पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो किसने दिया है? चाणक्य ने. सो दैट्स व्हाई वी कॉल हिम a Machiavelli of India. So he is Machiavelli of India. Okay. Next one is Man of Peace. Man of Peace किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को Man of Peace कहा जाता है. All right. So these are the names
these are the nicknames given to all these people which you can see in these pictures. Okay, so this is your exercise we have done. Now move on to the chapter. All right, so it will be on page number 55. So here it's the chapter. Sardar Vallabhbhai Patel was a political and social leader of India. So I'm going to read this chapter and explain you what's in this chapter. Okay, so as you can see here, Sardar Sardar Vallabhbhai Patel was a political and social leader of India who played a major role in the country's struggle for independence. जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो एक पॉलिटिकल मीन्स राजनीति और सोशल लीडर थे. सोशल मीन्स कि जो सोशल से जुड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है, समाज से, सामाजिक, ठीक है, तो सामाजिक लीडर थे इंडिया के जिन्होंने हु प्लेड अ मेजर रोल इन द कंट्रीज स्ट्रगल, जिन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किया देश को आज़ादी दिलाने में, ठीक है, आज़ादी दिलाने के स्ट्रगल में उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया एंड सब्सिक्वेंटली गाइडेड इट्स इंटीग्रेशन इनटू अ यूनाइटेड इंडिपेंडेंट नेशन, और गाइड किया एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने में, उसको एक जोड़ के रखने में, एकीकरण करने में, तो उसको उन्होंने और आगे बढ़ाया. तो नेक्स्ट वन इज ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन परसुएडिंग मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स. तो उन्होंने हेल्प की जो 500 प्रिंसली स्टेट्स थे, मोर देन मीन्स उससे भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे. प्रिंसली स्टेट्स मीन्स क्या होता है, जो पहले राजाओं के शासन में होते थे, ठीक है. तो जो 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया में शामिल करने की पूरी की पूरी कोशिश की उन्होंने. मर्ज विद इंडिया, टू मर्ज विद इंडिया मीन्स इंडिया में जोड़ने की. आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्री, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को मीन्स इंडिया को आज़ाद कर दिया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो 500 प्रिंसली स्टेट्स थे, ऑलमोस्ट मोर देन 500 भी हो सकते, मोर देन 500 थे, तो उनको इंडिया में जोड़ने की कोशिश की थी, ठीक है, उनको शामिल करने की कोशिश की थी, ठीक है. तो ही हेल्प्ड इन दैट ऑल्सो. फॉर हिज अनवेवरिंग कमिटमेंट, तो उनकी इस अटूट प्रतिबद्धता को देखते टू नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब देश को जोड़ने की, एंड स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व, और उनका एक जो संकल्प था, मतलब उन्होंने ठान लिया कि अब मुझे ये करना है, टू वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री. तो ये उनकी देश को जोड़ के रखने का जो काम था, संकल्प था, वो उन्होंने पूरी तरह से निभाया था. इसीलिए हम उनके नाम के आगे लगाते हैं द आयरन मैन ऑफ इंडिया. इसीलिए हम उनको द आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं. जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनके लिए हमने यूज़ किया द आयरन मैन ऑफ इंडिया. ऑलराइट, so next line is let's learn more about this remarkable man in the following lesson. So we will read about this remarkable man, extraordinary man in the following lesson. Which man I am talking about is Sardar Vallabhbhai Patel, as you can see in this picture. Okay. So what popularly known as the Iron Man of India. तो ये popularly इनको Iron Man of India के नाम से जाना जाता है. लौह पुरुष, हिंदी में बोलते हैं लौह पुरुष. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल was one of the founding fathers of the Republic of India. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है, मतलब जिसने एक गणराज्य की खोज की, भारत के गणराज्य की, ठीक है, तो गणतंत्र की, तो इसलिए उनको फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को. एंड ही प्लेड एन एग्जाम्पलरी रोल इन गेटिंग इंडिया इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. और उन्होंने एक बिल्कुल परफेक्ट रोल प्ले किया इंडिया को आज़ादी दिलाने में फ्रॉम द ब्रिटिश रूल से आज़ादी दिलाने में इंडिया को बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है.
मतलब उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो ही वॉज इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर India's independence from the British rule. All right. So, however, his role in the struggle of India's independence did not end just with that. तो सिर्फ इसके साथ इंडिया की इंडिपेंडेंस मीन्स भारत की आज़ादी के साथ उनका काम खत्म नहीं हुआ था। तो उनका जो स्ट्रगल था वो सिर्फ इंडिया को आज़ाद कराने का नहीं था, तो उनका काम वहाँ तक नहीं था, उनका काम वहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। ही वॉज द मैन हु गाइडेड द कंट्री टू बिकम अ यूनाइटेड इंडिपेंडेंट नेशन। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कंट्री को गाइड किया एक यूनाइटेड यूनाइटेड एकता मीन्स एकीकरण लाने में, मतलब एक एक करने में और एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने में, ठीक है, एक आज़ाद मुल्क देश बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट, बॉर्न टू अ गुजराती फैमिली इन करमसाड़। तो वो एक गुजराती फैमिली में पैदा हुए थे, जो करमसाड़ गुजरात में करमसाड़ एक जगह है वहाँ पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फोर्थ ऑफ द 6 चिल्ड्रन ऑफ हिज फादर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल फोर्थ थे, मतलब उनके 6 बच्चे थे जिसमें वो फोर्थ थे, मतलब उनसे बड़े 3 भाई थे और 2 छोटे भाई बहन थे, ठीक है। So he was the fourth of the 6 children of his father Javeri Bhai. Javeri Bhai. उनके पिता का नाम था झवेरी भाई. Okay. So move on to the next para. From a very young age. तो वो बहुत ही यंग एज से, बहुत ही टेंडर एज थी उनकी, उस टाइम से ही वल्लभ भाई डिस्प्ले रिमार्केबल मेंटल टफनेस। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी टफनेस दिखाई थी, मतलब वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड फिजिकल स्ट्रेंथ उनकी इतनी अच्छी थी। तो उनके बारे में एक किस्सा है कि क्या है, वंस ही हैड अ बॉयल इन हिज आर्मपिट, कि एक बार क्या हुआ कि उनके आर्मपिट में, आर्मपिट मीन्स जो आप हिंदी में कहते हो बगलें जो आपकी होती हैं, ठीक है, तो बगल में उनके क्या हो गया, अ बॉयल मीन्स फोड़ा, फोड़ा हो गया। एंड ड्यूरिंग दोज डेज, उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि उनके गांव में हुआ करता था कि जो लोग थे जब भी फोड़ा हुआ करता था तो वो एक आदमी के पास जाते थे, and during those days in his village the people usually went to a man who used to heat an iron rod and put it on the boil to treat it. Okay, तो वो लोग क्या करते थे, यूजुअली उस गांव में लोग कहाँ जाया करते थे, एक आदमी के पास जाया करते थे जो एक आयरन रॉड को गर्म करके उस बॉयल पर लगाता था, मतलब बहुत अच्छे से उसको हीट करके आयरन रॉड को, जो लोहे की रॉड होती है उसको हीट करके गर्म करके बहुत ज़्यादा उसे किस पे लगाया करता था, बॉयल, मतलब कि जो फोड़ा होता है उस पे, ठीक है, उसको सही करने के लिए। When young Patel went to him, जब young पटेल उसके पास गए, उस मैन के पास जो फोड़ा सही करता था, he was reluctant to treat him, तो वो पीछे हट रहा था कि इसको मैं कैसे ट्रीट करूँ, ये तो एक छोटा बच्चा है, इसको मैं ट्रीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ही वॉज वेरी हेजिटेटिंग, ही वॉज अनविलिंग, मीन्स वो नहीं चाहता था कि इस बच्चे को और दर्द हो क्योंकि वो बहुत ही कष्टदायक था, ठीक है। बट पटेल डिड नॉट वेट फॉर द मैन and himself placed the hot iron rod on his boil. लेकिन पटेल ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया उस आदमी का कि वो कब ट्रीट करेगा उसको, वो हॉट आयरन लगाएगा उस बॉयल पे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद वो आयरन रॉड उठाया जो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था और उसको अपने बॉयल पर खुद ही अपने आप ही लगा लिया, ठीक है। तो इसलिए हम उनको कह सकते हैं कि वो मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, मेंटल टफनेस और फिजिकल स्ट्रेंथ उनकी काफ़ी अच्छी थी। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया इसलिए उनको कहा भी जाता है। देन पटेल ग्रू अप टू बिकम अ बैरिस्टर। तो पटेल बड़े हुए और वो क्या बन गए, बैरिस्टर बन गए। बैरिस्टर कौन होते हैं, बैरिस्टर लॉयर को हम बोलते हैं, एडवोकेट को बोला जाता है बैरिस्टर, ठीक है। तो वर्किंग हार्ड ही ग्रेटली एक्सपेंडेड हिज प्रैक्टिस एंड हिज वेल्थ। तो उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा बढ़ाया और अपनी वेल्थ को भी, जो उनके पास धन था उसको भी बढ़ाया और प्रैक्टिस को भी बढ़ाया। Meanwhile, he got inspired by the work.
तो उसी बीच उसी दौरान क्या हुआ कि वो इंस्पायर हुए, प्रभावित हुए किसकी टीचिंग से, किसके काम से, महात्मा गांधी के काम और उनकी शिक्षा से, एंड बिकम कीनली इंटरेस्टेड इन इंडिया स्ट्रगल, और बाद में उनको वो अच्छे से उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, किसमें, इंडिया के स्ट्रगल में, जो इंडिपेंडेंस आज़ादी के लिए स्ट्रगल लड़ा जा रहा था, लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाई, इंटरेस्ट, अपनी रुचि दिखाई भारत को आज़ाद कराने में। ठीक है, वो किसको देखते हुए उन्होंने दिखाई? ही गॉट इंस्पायर्ड बाय द वर्क एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, क्योंकि वो उनके काम से और उनकी शिक्षाओं से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, इसीलिए उन्होंने इंडिया के स्ट्रगल में जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा जा रहा था उसमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाई। एज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अच्छे खासे लीडर थे। ही रोज टू प्रोमिनेंस इन हिज होम, तो वो अपने जो होम मतलब गुजरात में वो काफ़ी फेमस हो चुके थे, क्योंकि कुछ prominence in his home state Gujarat for his outstanding work of saving the peasants of Gujarat। तो वो किस लिए फेमस हो गए थे? जो वहाँ के फार्मर्स वगैरह थे गुजरात के, जो गरीब लोग थे, उनकी उन्होंने मदद की थी। जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थी, वर्क ऑफ सेविंग द पीजेंट्स ऑफ गुजरात फ्रॉम द ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश राज, जो भी उनकी ऑपरेसिव पॉलिसीज मीन्स जो क्रूअल पॉलिसीज थी, अनफेयर, जो बिल्कुल भी सही पॉलिसीज नहीं थी, उनसे उनको उन्होंने बचाया था। किनको बचाया था? जो पीजेंट्स वगैरह थे उनको बचाया था, जो गरीब थे। ठीक है, फार्मर्स वगैरह और जो लेबर होती है उन सभी को की उन्होंने मदद की थी। उसको ब्रिटिश राज की जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थी जो उन पर थोपी गई थी, तो उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। कौन से सत्याग्रह में? बरदौली सत्याग्रह में। ठीक है, उस सत्याग्रह का नाम जो उन्होंने पीजेंट्स के लिए, उनको सेव करने के लिए बनाया था, उसको बोला जाता है बरदौली सत्याग्रह। ठीक है, देन इट वॉजंट लॉन्ग बिफोर पटेल बिकेम इंडिस्पेंसिबल, कि जो पटेल थे वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए थे, क्योंकि वो बहुत ही टफ थे, मेंटली टफ थे, और इट वाज फॉर हिज एबिलिटी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो उनकी योग्यता जो थी, जो हमेशा वो आगे से ही, फ्रंट से ही लीड करते थे सभी को, दैट ही वाज गिवन द निकनेम सरदार। तो इसकी वजह से उनको ये निकनेम सरदार दिया गया। ठीक है, इसीलिए उनको एक और नाम दिया गया सरदार का। ठीक है, सरदार दिया गया, और द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो वो उनकी मेंटली टफनेस की वजह से दिया गया, मेंटल टफनेस की वजह से। ठीक है, और सरदार बिकॉज ही और हिज एबिलिटी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, दैट्स व्हाई ही वाज गिवन द निकनेम सरदार। और सरदार का मीनिंग क्या होता है? द हेड। ओके, नाउ टर्न द पेज। देन चीफ, मैंने आपको बताया कि सरदार का मतलब क्या होता है? चीफ। ठीक है, जो मुख्य होता है उनमें, मतलब बहुत सारे लोग हैं उनमें जो चीफ है, जिससे हम बात कर सकते हैं, तो सरदार मीन्स चीफ। पटेल इज ऑल्सो क्रेडिटेड with establishing the modern all India civil services, and for the same is regarded as the patron saint of India's civil servants। तो जो पटेल हैं उनको पब्लिसिटी एक्नॉलेज फॉर डूइंग समथिंग मीन्स उन्होंने पब्लिक में उनको ये भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने किसकी स्थापना की थी? ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की। ठीक है, जो इंडिया में सिविल सर्विसेज होती हैं उसकी जो स्टैब्लिश उनकी नींव डाली थी, वो किसने डाली थी? मतलब स्टैब्लिश किया था, उसे किसने स्टैब्लिश किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए उनको पेट्रोन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो सरदार पटेल सपोर्टेड, सरदार पटेल ने किसका साथ दिया? द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो उन्होंने किस चीज़ को सपोर्ट किया? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण में
का साथ दिया एंड वर्कड फॉर, और उन्होंने काम क्या किया, फॉर अबॉलिशिंग एल्कोहलिज्म, मीन्स जो एल्कोहल वगैरह पीते हैं या शराब वगैरह और ये जो एल्कोहल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ को हटाने की कोशिश की उन्होंने, इरेडिकेट करना चाहा, मीन्स हटाना चाहा, अनटचेबिलिटी को हटाना चाहा। अनटचेबिलिटी मीन्स होता है छुआछूत, मीन्स कि अब वो छोटी जाति का है तो मैं उसको नहीं छूऊंगा, तो दैट इज अनटचेबिलिटी। एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम सोसाइटी, और क्या हटाना चाहा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट के बीच में भेदभाव था उसको हटाने की भी कोशिश की उन्होंने उस समाज से, फ्रॉम सोसाइटी। ओके, सो सरदार पटेल एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, सरदार पटेल हमेशा पार्टिसिपेट करते थे गांधी के जितने भी क्विट, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट था, तो उन्होंने जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें भी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, मतलब उसमें भी उनका बहुत ही अहम रोल था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट मीन्स भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, तो भारत, क्विट मीन्स छोड़ना, इंडिया मीन्स भारत एंड मूवमेंट मीन्स आंदोलन, ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसमें उन्होंने बहुत ही अहम रोल प्ले किया था, जो गांधी ने स्टार्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट उसमें। तो क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन इन, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, इन अगस्त 1942, तो ये 1942 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें सरदार पटेल इन्फ्लुएंस द लार्ज क्राउड दैट हैड assembled। तो सरदार पटेल ने क्या किया था, एक बहुत बड़ी भीड़ जो इकट्ठी हुई थी टू टेक पार्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस, कि अब वो किसी की भी बात नहीं मानेंगे, जो भी वो बोलेंगे उसको सिर्फ हमें मना करना है। तो उसमें उसने सरदार पटेल ने उन्होंने एक लार्ज क्राउड को, बहुत बड़ी जो भीड़ थी उसमें उनको इन्फ्लुएंस, प्रभावित किया था, ठीक है, विच इंक्लूडेड द शटडाउन ऑफ ऑल सिविल सर्विसेज। तो उसमें क्या इंक्लूड था, जितनी भी सिविल सर्विसेज थी उसमें उन सभी को बंद कर दिया गया था, एंड रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस, और उन्होंने क्या कहा था कि हम कोई भी पे नहीं करेंगे, टैक्स पे नहीं करेंगे, और वो बिल्कुल उस चीज़ के लिए राजी हो गए थे। तो वल्लभ भाई वॉज अरेस्टेड इन दिस एजिटेशन एंड रिलीज ओनली आफ्टर 3 years। तो वल्लभ भाई को उस टाइम पे अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, इस लार्ज क्राउड को, इसीलिए उनको क्या किया गया, उस टाइम पे अरेस्ट किया गया इन दिस एजुटेशन, इस आंदोलन की वजह से, एंड रिलीज ओनली आफ्टर, और उनको 3 साल बाद छोड़ दिया गया। इन जून 1945, तो इन जून 1945 में क्या हुआ, स्ट्राइक हुई, प्रोटेस्ट हुई, हड़ताल वगैरह जो होती है, प्रोटेस्ट, जो विद्रोह वगैरह हो जाते हैं, तो प्रोटेस्ट हुई, हड़ताल हुई, एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो भी होती हैं वो सभी हुए एंड रूल्ड इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। तो उस टाइम पे इन जून 1945, उस टाइम पे जब वो छूटे थे जेल से, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही थी, स्ट्राइक्स, मतलब सरकार के खिलाफ, सरकार मीन्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें हो रही थी, कहीं स्ट्राइक्स हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, मतलब देश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, सो ड्यूरिंग दैट टाइम विद द रिजल्ट दैट द ब्रिटिश डिसाइडेड टू लीव इंडिया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1945 में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया छोड़ देंगे एंड ट्रांसफर द पावर टू द इंडियंस, और जो भी पावर्स उनके पास है वो वाली पावर्स वो किनको दे देंगे, जो इंडिया में है, जो इंडियंस हैं उनको। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे। So I hope whatever I have taught you, you have understood, and that is all for today. And if you have any doubt related to this chapter, Sardar Vallabhbhai Patel, you can ask me on class WhatsApp group or anything. I will answer you in the next video. Okay. So uh, that's all for today, and see you tomorrow.
Thank you. Bye bye.